السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ جل جیون مشن ایوارڈ تلنگانہ مشن بھاگیرتا اسکیم کو دیا گیا۔ یہ واحد ریاست جو گھرانوں کو 100% صاف پانی فراہم کر رہی، جو سب سے باوقار اور کامیابی کے ساتھ نافذ ہے۔ رنگاریڈی ضلع پریشد دفتر خیرتآباد کے کانفرنس ہال میں ریاستی وزیر پنچایت راج دیہی ترقیات اراولی دیاکر راؤ نے ایک میڈیا کانفرنس کا کیا اہتمام۔ پنچایت راج دیہی ترقی کے سیکرٹری سندیپ کمار سلطانیہ اور دیگر نے اس پروگرام میں کی شرکت۔ دیاکر راؤ کے ذریعے کئی عہدیداروں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کی سازش کے الزام کے تحت حیدرآباد سے 3 نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس نے ایک خفیہ اطلاع پر ان تینوں کو گرفتار کیا، تاہم پولیس نے تینوں دہشت گردوں کو گاندھی ہسپتال منتقل کیا اور طبی معائنے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ BC ویلفیئر سول سپلائز کے وزیر گنگولا کملاکر، سٹی میئر یادگیری سنیل راؤ اور دیگر نے مانیرو ڈیم 11 امیگن میں نئے تعمیر شدہ بدکما گھاٹ، سیڑھیوں اور ریلنگ کا کیا افتتاح۔ کالونی کولا سمپت اور ڈویژن کے مکینوں نے اس پروگرام میں کی شرکت۔ AIMIM کے صدر و MP حیدرآباد اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کاروان محبوب پرائڈ پیلس میں آصف نگر منڈل کے آسرا پنشن کے تحت 2775 کارڈز کیے تقسیم۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے ایک پریس میٹ کی منعقد اور کہا ان بہنوں کے لیے نیک تمنائیں جو بدکما منا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا بدکما اور دسہرہ کے تہوار کے موقع پر ریاست کے لوگوں کے لیے خوشخبری۔ ریاست تلنگانہ میں اسی تعلیمی سال سے 8 نئے سرکاری میڈیکل کالجوں میں 1200 نئے داخلے، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے حیدرآباد چار مینار کے آس پاس بھارت جوڑو یاترا کے راستے کا کیا معائنہ۔ واضح ہے کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا تلنگانہ میں 375 کلومیٹر کا احاطہ کرے گی اور پارٹی نے یاترا میں پرانے شہر کو بھی شامل کیا۔ وزیر تلاسانی سنواس یادو نے کہا اس مہینے کی 5 تاریخ کو شہر بھر میں بڑے پیمانے پر تقریبات کے انتظامات کیے جا رہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ TRS پارٹی جنرل باڈی کا اجلاس پیر کو تلنگانہ بھون میں وزیر تلاسانی سنواس یادو کی ہدایت پر منعقد ہوا۔ ملک پیٹ ٹریفک پولیس نے انلیگل پارکنگ وہیکلز کو لے کر چلائی مہم اور نو پارکنگ زون میں گاڑی پارک کرنے والوں پر کیے چالانات۔ رنگاریڈی 315 پلر نمبر راجندر نگر آرام گڑھ اسکوائر کے پاس ایک اسکریپ کی دکان میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، تاہم اطلاع کے ساتھ ہی آتش فروغ عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک،
हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में हर घर नल के जरिए महफूज पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को अवार्ड का मुस्तहक करार दिया। नल के जरिए हर घर को पानी की सरबराही में तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त है। हुकूमत की जानिब से मिशन भगीरथा के तहत इस स्कीम पर अमल किया गया और मरकजी हुकूमत ने प्रोग्राम मिशन भगीरथा रेगुलेटरी के जुमरे में तेलंगाना को पहला अवार्ड दिया है। स्वच्छ भारत दिवस जश्न के तहत नई दिल्ली में मुनाकिदा तकरीब में मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिशन भगीरथा टीम अरकान बशमूल ENC कृपाकर रेड्डी और दूसरों को अवार्ड पेश किए। हैदराबाद रंगारेड्डी जिले परिषद दफ्तर खैरताबाद के कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती वजीर पंचायत राज देही तरक्यात इर्राबली दयाकर राव ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस मौके पर पंचायती राज देही तरक्की के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, डायरेक्टर हनुमंत राव, मिशन भगीरथा ENC कृपाकर रेड्डी ने वजीर इर्राबली दयाकर राव के जरिए कई ओहदेदारों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर वजीर इर्राबली दयाकर राव ने कहा है कि सेंट्रल अवार्ड मिशन भगीरथा ने पंचायती राज को अवार्ड्स दिए हैं जो उनकी सखाफत का सबूत है। चीफ मिनिस्टर KCR की दूर अंदेशी से रियासत तरक्की की राह पर गामजन है और मरकज से कई एजाजात हासिल कर रही। अवामी मुकामात को निशाना बनाने की साजिश के इल्जाम के तहत हैदराबाद से 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सिटी पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर अब्दुल जाहिद साकिन मुसरम बाग, मोहम्मद समीउद्दीन साकिन अकबर बाग और मुआज हसन फारूक साकिन हुमायूं नगर को गिरफ्तार कर लिया था। ताहम पुलिस ने तीनों अफराद को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर उनके तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। BC वेलफेयर सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर, सिटी मेयर यादगिरी सुनील राव, म्यूनिसिपल कमिश्नर सेवा स्लावत, डिवीजन कॉर्पोरेटर अकुला नर्मदा, नरसैया TRS कायदीन, चल्ला हरिशंकर, इडला अशोक, जिन्होंने मानेरू डैम 11 एमेगन में नए तामीर शुदा बदकुमा घाट, सड़ियों और रेलिंग का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर कॉलोनी कोला संपत और डिवीजन के मकीनों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान BC वेलफेयर सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर ने खवातीन को बदकुमा त्यौहार की मुबारकबाद भी पेश की। ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని చోట్ల 20 చోట్ల లైటింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ పవర్ ఇంటరప్ట్ అయితే కూడా జనరేటర్ వ్యవస్థను పెట్టడం జరిగింది చాలా చోట్లలో. సో ఈరోజు మళ్ళీ ఇక్కడ నీళ్ళల్లో చిన్న పొరపాటు జరిగి యాక్సిడెంట్ ఇబ్బంది కాకుండా సింహాసులు పెట్టడం జరిగింది. నీళ్ళలో సింహాసులు బతుకమ్మ వేసినప్పుడు ప్రమాదం జరుగుతాయి ఇమీడియట్ అలర్ట్ అయ్యేందుకు సింహాసులు అంటే ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ శాఖ, రెవెన్యూ అందరం కలుసుకుని ఆడబిడ్డలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కాకుండా ఆడుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేకుండా అన్ని నిమజ్జన కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उन बहनों के लिए नेक तमन्नाएं जो बदकुमा त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मना रही हैं। इसके अलावा वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बदकुमा और दशहरा के त्यौहार के मौके पर रियासत के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रियासत तेलंगाना में इस तालीमी साल में 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1200 नए दाखिले हो रहे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुल्क की तारीख में ये पहला मौका है कि एक तालीमी साल में 1200 निशस्तें दस्तयाब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2004 से 2014 तक में यूनियन ने स्टेट के गांधी अस्पताल का दौरा किया और मेडिकल कॉलेजेस के मामले में तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफी पर बात की थी। उन्होंने मजीद कहा कि यूनियन रियासत में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज हैं, आदिलाबाद, निजामाबाद और वारंगल। यूनियन के 70 साल के दौर में 3 कॉलेज बने, 7 सालों में 17 कॉलेज बने। हम 7 सालों में 12 नए कॉलेज हासिल करने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा है कि अगर उस्मानिया, गांधी और यूनियन स्टेट में कायम होने वाले 3 कॉलेजेस 5 हैं तो तेलंगाना रियासत ने नए 12 कॉलेजेस कायम किए हैं। రాష్ట్రం ఏర్పడితేనే మనకు మెడికల్ కాలేజీలు వస్తాయని 2004 నుంచి 2014 మధ్య పలుసార్లు గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడినా, విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించాం. అంటే సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగింది, రాష్ట్రం ఏర్పడితే తప్పకుండా మనకు మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పి ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఉద్యమ సమయంలో ఇవాళ ఆ కళ నిజమైతా ఉంది. సమైక్య రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే 3
ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చాయి. వరంగల్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్. 70 సంవత్సరాల సమైక్య పాలనలో సమైక్య రాష్ట్రంలో 3 కాలేజీలు వస్తే 7 సంవత్సరాల్లోనే 17 కాలేజీలు తెచ్చుకోగలిగాం. ఆ సంఖ్యను 17కు పెంచుకోగలిగినాం. అంటే కొత్తగా 12 కాలేజీలు యాడ్ చేసినాం. ఈ 7 సంవత్సరాల్లో 12 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు కొత్తగా యాడ్ అయినాయి. అంతకుముందున్న ఉస్మానియా, గాంధీ సమైక్య రాష్ట్రంలో పెట్టిన 3, మొత్తం 5. కొత్తగా 12 మెడికల్ కాలేజీలు యాడ్ చేస్తే ఇలా మెడికల్ కాలేజీల సంఖ్య 17కు పెరిగింది. 70 సంవత్సరాల్లో 3 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు వస్తే 7 సంవత్సరాల్లో 12 కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమయ్యాయి. అందులో ఈ విద్యా సంవత్సరం ఒకే విద్యా సంవత్సరంలో 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు రావడం అనేది ఇదొక చారిత్రాత్మక. नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद चार मीनार के आसपास के इलाकों का दौरा किया, जहां भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते का भी मुआयना किया गया है. वाज़ेह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 375 किलोमीटर का अहाता करेगी और पार्टी ने यात्रा में पुराने शहर को भी शामिल किया है. राहुल गांधी की यात्रा तारीखी चार मीनार से गुजरते हुए पुराने शहर के बाज़ इलाकों का अहाता करते हुए कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन से गुजरेगी. रियासती वजीर KTR ने मशहूर यूट्यूबर गंगावा से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उनके शो माई विलेज शो में मेहमान होंगे. रियासती वजीर सनत KTR ने इतवार के रोज करीमनगर कुलुस्टालू में माई विलेज शो के मलकूरी गंगावा से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि मकबूल यूट्यूब स्टार गंगावा से मुलाकात करके खुशी महसूस हुई. उन्होंने ट्वीट किया, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं जल्द अज जल्द उसके माई विलेज शो में मेहमान बनूंगा. बताया गया है कि गंगावा किसी स्टार से कम नहीं, जिसके यूट्यूब चैनल माई विलेज शो पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वो मुज़हिका खैज खाकों में अदाकारी करते हैं, मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज लेते हैं, फिल्मों में अदाकारी भी करते हैं, बिग बॉस तेलुगु में भी नजर आ चुके हैं. गंगावा इंटरनेट पर बहुत से लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं. तेलुगुदेशम पार्टी का बाज़ाब्ता ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया. तेलुगुदेशम पार्टी के जराये ने बताया कि ट्विटर हैंडल पर तेलुगुदेशम पार्टी के यूजर नाम की बजाय टायलर हॉब्स का नाम दिखाई दे रहा था और तेलुगुदेशम पोस्ट के बजाय दूसरे पोस्ट मौजूद थे. ये पोस्ट आर्ट से मुताल्लिक थे. तेलुगुदेशम जराये ने इल्जाम आयद किया कि ट्विटर अकाउंट की हैकिंग में YSR कांग्रेस पार्टी के हामियों का रोल है. इस सिलसिले में पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई और उन्होंने बताया कि अकाउंट को बहाल करने की कोशिश की गई. वाज़ेह कि इससे कबल तेलुगुदेशम का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, ताहम चंद घंटों की कोशिश के बाद उसे बहाल कर दिया गया था. मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3011 नए मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के जेर इलाज मरीजों की तादाद 36,126 तक पहुंच गई है. वजारत सेहत ने मजीद बताया है कि इस मुद्दत में 4,301 लोगों को कोविड से डिस्चार्ज किया गया है. अब तक कुल 4,40,32,671 मरीज सेहतयाब हुए हैं. वहीं मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,34,849 कोविड टेस्ट किए गए हैं. मुल्क में अब तक 89,57,48,815 कोविड टेस्ट किए गए. ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो और ब्राजील के साबिक सदर लुइस एनासियो लोला डी सल्वा सदारती इंतखाब के लिए रन ऑफ में हिस्सा लेंगे. इलेक्टोरल कोर्ट TSE ने ऐलान किया कि तकरीबन 99.6% वोटिंग मशीनों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है. साबिक सदर लोला को 48.3% दुरुस्त वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 43.3% वोट मिले. इससे कबल दोनों पहले राउंड में जीत से महरूम रहे थे.
CSE के चेयरमैन एलेक्जेंडर डी मॉरिस ने पहले कहा था कि पोलिंग का दिन बगैर किसी बड़े वाक़े के मामूल के मुताबिक गुजर गया। ब्राजील के सदर, नायब सदर, गवर्नर्स, सेनेटर्स और वफाकी और रियासती नुमाइंदों के इंतखाबात में 15 करोड़ 64 लाख वोटर्स वोट डालने के अहल थे। ब्राजील के इंतखाबी कानून के मुताबिक पहले राउंड में मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को निस्फ से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। जल जीवन मिशन अवार्ड तेलंगाना मिशन भगीरथा स्कीम को दिया गया। ये वाहिद रियासत जो घरानों को 100% साफ पानी फराहम कर रही, जो सबसे बावकार और कामयाबी के साथ नाफिज है। रंगारेड्डी जिले परिषद दफ्तर खैरताबाद के कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती वजीर पंचायत राज देही तरक्कियात इर्रावली दयाकर राव ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का किया एहतमाम। पंचायती राज देही तरक्की के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर ने इस प्रोग्राम में की शिरकत। दयाकर राव के जरिए कई ओहदेदारों को एजाज से नवाजा किया। अवामी मुकामात को निशाना बनाने की साजिश के इल्जाम के तहत हैदराबाद से 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक खुफिया इतला पर इन तीनों को गिरफ्तार किया। ताहम पुलिस ने तीनों दहशतगर्दों को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया और तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। बीसी वेलफेयर सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर, सिटी मेयर यादगिरी सुनील राव और दीगर ने मानेरू डैम 11 एमेगन में नए तामीर शुदा बदकुमा घाट, सीढ़ियों और रेलिंग का किया इफ्ताह। कॉलोनी कोला, संपत और डिवीजन के मकीनों ने इस प्रोग्राम में की शिरकत। AIMIM के सदर वो MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान महबूब प्राइड पैलेस में आसिफ नगर मंडल के आसरा पेंशन के तहत 2775 कार्ड्स किए तकसीम। वजीर सेहत हरीश राव ने एक प्रेस मीट की मुनक्किद और कहा उन बहनों के लिए नेक तमन्नाएं जो बदकुमा मना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा बदकुमा और तसेरा के त्यौहार के मौके पर रियासत के लोगों के लिए खुशखबरी। रियासत तेलंगाना में इसी तालीमी साल से 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1200 नए दाखिले, ये बहुत बड़ी कामयाबी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद चार मीनार के आसपास भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते का किया मुआयना। वाज़ेह कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 375 किलोमीटर का अहाता करेगी और पार्टी ने यात्रा में पुराने शहर को भी शामिल किया। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा इस महीने की 5 तारीख को शहर भर में बड़े पैमाने पर तकरीबात के इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट TRS पार्टी जनरल बॉडी का इजलास पीर को तेलंगाना भवन में वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की हिदायत पर मुनक्किद हुआ। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने इलीगल पार्किंग व्हीकल्स को लेकर चलाई मुहिम और नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने वालों पर किए चालानात। रंगारेड्डी 315 पिल्लर नंबर राजेंद्र नगर आरामगढ़ स्क्वायर के पास एक स्क्रैप की दुकान में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया। ताहम इत्तला के साथ ही आतिश फरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।